भारत की बेटी कल्पना चावला जो बचपन से ही अंतरिक्ष में जाना चाहती थी। I think for me it was very far-fetched to think I'd get to fly on the space shuttle because I lived in India in a very small town, and forget about space, I didn't even know if my folks were going to let me go to the engineering college, and that was the immediate goal. कल्पना चावला भारत में ही जन्मी, यहाँ पर ही पली बढ़ी और शुरुआती शिक्षा भारत में ही लिया। बाद में फिर अपने सपनों के उड़ान में उड़कर वो अमेरिका पहुंच गई। उनके पापा आज भी उन्हें याद करते हैं। जब कल्पना नहीं आई तो फिर मैंने एक दिन नासा को कहा कि जी मुझे उसका दफ्तर तो दिखा दो, कहाँ बैठती थी वो। तो ले गए उसके दफ्तर। उसके दफ्तर में हमने देखा उसकी मेज पर लैपटॉप खुला पड़ा है और एक कोने में एक फोटो है, वो भी उसके माँ बाप की थी। और इधर वाले कोने में छोटे छोटे जहाज हैं, टॉय जहाज, वो लाइन लगाई हुई है उसमें, जो हमने देखी है। तो उसको लव थी जहाजों से और माँ बाप से। हमारे घर में इतना पढ़ा लिखा कोई नहीं है। उसकी अपनी सोच थी कि मुझे आगे इंजीनियरिंग करनी है, चंडीगढ़ जाना है मुझे पढ़ने। यहाँ करनाल में भी अलग अलग कॉलेजों में पढ़ी है अपने स्कूल को छोड़ के। लेडीज़ कॉलेज में भी एक साल दयाल सिंह कॉलेज में 2 साल यहाँ करके फिर चंडीगढ़ गई। किसी को पता ही नहीं, वो अपने दिमाग से ही सब कुछ सोचती थी मुझे कहाँ क्या करना है। तो चंडीगढ़ भी वो अपने डैडी को लेके नहीं गई है। मुझे कहती थी मैं उनके साथ नहीं जाना, वो सिफारिश करेंगे, मुझे सिफारिश से दाखिला नहीं लेना है। सुनिए भारत के प्रधानमंत्री ने कल्पना चावला से क्या बात की थी। कोलंबिया, हेलो कोलंबिया, दिस इज प्राइम मिनिस्टर गुजराल फ्रॉम इंडिया। कैन यू हियर मी? Yes, Mr. Gujral, I hear you loud and clear. How do you read me? Kalpana, we are proud of you. Each one of us in India is proud of us. Proud of person like you who has done such a pioneering work. And particularly the women and youth of India take great deal of pride in seeing what you have done in the space. My hearty congratulations. Thank you, sir. Thank you very much. You know, when I think of you, I think what a long journey you have covered from Karnal to space, long distance. And therefore, when I talk to you, I feel I'm talking to a person who is representing India in the space now. My all good wishes to you. Thank you, sir, very much. Those are very kind words. You know, Kalpana, I do not know if you remember, there is a saying by one of our poets who is very well known in the subcontinent, Iqbal. He said this, सितारों से आगे जहां और भी हैं, there are worlds beyond stars, and now you have seen them. How do you feel about them? It's a very special feeling, and really out here, the night sky, when you look at it, what you are saying does become very literal. It's a dome of a dark sky and stars everywhere, and the earth a lot of time covered with thunderstorms here and there, with some small sprays of lightning, and every once in a while city lights the clouds, and it is very much like a storybook. And the crew that I'm working with out here, all of us work so well together, and it's such an honor and privilege to be able to share this very special mission with them. And I want to extract a promise from you that when you come back to the earth, please come to India with all your friends in the satellite and also your whole family. Sir, the whole crew would love to come, and that would be an honor. You will be most welcome guest
of the Indian people and the government. They all take so much pride in you and excited about you that when you come and meet them, they'll be extremely delighted, and you must come. So yes, we will surely come, and like I said, that's definitely an honor. And you know, Kalpana, you come originally, your family came from Karnal, and it was in that area where a famous poet Kalidas was there, who wrote that famous song about Swim of the Swan. Yes, and I know about that, and that's a very special thing. And you are that swan now swimming in the space. That does sound good. And thank you very much. Once again, my feeling of thanks to you for all that you have performed. You have made all of us proud of you. Thank you, sir. Thank you very much. Thank you for calling us on the orbiter. And if you would just take a second, a couple of days ago, we taped a view of Himalayas from the orbiter, and I'll downlink it to you for a minute or so, and we can be talking while that's happening. Thank you. आपसे अनुरोध है, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और इस वीडियो को लाइक करें, जिससे और भी लोगों तक ये वीडियो पहुंच पाए। आपको बता दें कि कल्पना चावला पहली भारतीय महिला थी जो स्पेस में गई थी। कल्पना चावला ये बखूबी जानती थी कि अगर कोई उनके सपने को पूरा कर सकता है तो वह था नासा। हरियाणा के करनाल में जन्मी कल्पना चावला पहले पंजाब यूनिवर्सिटी से एरोनॉटिक्स में इंजीनियरिंग की, उसके बाद आगे की पढ़ाई के लिए अमेरिका चली गई। कल्पना चावला अमेरिका पहुंचने के बाद वहां पर 2 मास्टर की डिग्री लेती है एरोस्पेस इंजीनियरिंग में, एक यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्सास से और दूसरा यूनिवर्सिटी ऑफ कोलोराडो से। यूनिवर्सिटी ऑफ कोलोराडो से ही कल्पना चावला पीएचडी करती है एरोस्पेस इंजीनियरिंग में और फिर कदम रखती है नासा में। कल्पना चावला नासा में अपनी काबिलियत के दम पर सभी टेस्ट पास करती है और फिर एस्ट्रोनॉट के लिए चुनी जाती है। 1997 में कल्पना चावला अपने सपने को पूरा करती है और स्पेस शटल कोलंबिया के जरिए वह अंतरिक्ष में जाती है और पृथ्वी की 252 बार चक्कर लगाती है और हमारी दुनिया को करीब से देखती है। इस मिशन के बाद कल्पना चावला अपने 6 क्रू मेंबर के साथ सफलतापूर्वक धरती पर लौट आती है। इस सपने ने सिर्फ कल्पना चावला के बचपन के सपने को पूरा नहीं किया, बल्कि करोड़ों भारतीय नौजवानों के दिलों में भी एक सपना जगा दिया कि हम भी अपनी दुनिया को अंतरिक्ष से देख सकते हैं। इस सफल मिशन के बाद कल्पना चावला को फिर ईयर 2000 में सेलेक्ट किया जाता है नेक्स्ट मिशन के लिए। प्लान के अनुसार ये मिशन 2002 में लॉन्च किया जाना था, पर कभी इंजन में कुछ प्रॉब्लम हो गई और कभी स्पेस शटल में कुछ प्रॉब्लम हुई, जिसके कारण 2-3 बार इसे डिले किया गया। आखिरकार 16 जनवरी 2003 को स्पेस शटल कोलंबिया अंतरिक्ष की तरफ उड़ान भरता है, जिसमें 7 क्रू मेंबर थे कल्पना चावला को लेकर, और इन्हें 1 फरवरी को वापस लौटना था। ये सफर 16 दिन का था, जिसमें 80 तरह की एक्सपेरिमेंट करनी थी। 7 क्रू मेंबर 24 घंटे 2 शिफ्ट में काम करते थे। ये क्रू मेंबर 80 तरह की साइंस के एक्सपेरिमेंट सफलतापूर्वक पूरा करते हैं और 1 फरवरी 2003 को ये वापस धरती की तरफ लौटते हैं। जैसे ही इनका स्पेस शटल अंतरिक्ष से हवा की तरफ आता है, अचानक 30 सेकंड के अंदर ये जलकर राख हो जाती है, क्योंकि स्पीड बहुत ज्यादा होती है और हीट 3000 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है। कल्पना चावला के साथ सभी 7 क्रू मेंबर मारे जाते हैं। इनके बॉडी के मलबे कई किलोमीटर दूर दूर में मिलते हैं। बाद में इन्हें आइडेंटिफाई किया जाता है और अंतिम संस्कार किया जाता है। हादसे में जलकर राख हुई स्पेस शटल कोलंबिया कुल मिलाकर 28 बार अंतरिक्ष में गया था और इसे कुछ इस तरह बनाया गया था कि ये टोटल 100 बार अंतरिक्ष में जा सकता था। इस दुर्घटना के बाद इंक्वायरी बैठाई गई और जांच की गई आखिर ये घटना क्यों हुई। 16 जनवरी 2003 को जब ये स्पेस शटल कोलंबिया धरती से लॉन्च हुआ, तो लॉन्च होने के बाद इसके स्पेस शटल प्रोग्राम में कुछ प्रॉब्लम आ गई,
जिससे इसका एक बड़ा टुकड़ा टूटकर लेफ्ट विंग में लगा और स्पेस शटल में एक होल हो गया। नासा के साइंटिस्ट को पता था कि ये एक बड़ा डैमेज है और इसकी क्षतिपूर्ति नहीं की जा सकती क्योंकि ये पहले ही टेक ऑफ हो चुका है। नासा के साइंटिस्ट से जब सवाल किया गया तब उन्होंने कहा कि अगर हम उन्हें बताते तो उनका हर दिन और हर पल मौत से भी बदतर होता, और अगर हम उन्हें ऑक्सीजन के सहारे रहने को कहते तो एक समय बाद ऑक्सीजन खत्म हो जाता और उसके बाद उनकी दम घुटने से मौत हो जाती, जो और भी ज्यादा दर्दनाक होती। वैसे आपको नहीं लगता कि नासा को बता देना चाहिए था कि इनकी मौत अब कुछ दिनों में ही निश्चिंत है, जिससे ये अपने अधूरे काम को पूरा कर पाते या अपने परिवार के लोगों से बात कर पाते। वैसे जीने की तमन्ना तो हर किसी को होती है। हो सकता है कि स्पेस शटल में जो इतनी बड़ी असुविधा हुई थी उसकी क्षतिपूर्ति करके ये वापस धरती पर भी आ सकते थे। वैसे आपको क्या लगता है, नासा ने सही किया? कमेंट करके बताएं।